Yesterday we were discussing the recurrence relation in towers of Hanoi problem. We have found the recurrence in towers of Hanoi and then we solved it using the guess and verify method. So can you tell me the explicit formula or solution of towers of Hanoi recurrence? What is it? Yes. Explicit formula of towers of Hanoi problem. Is it very difficult? No one know? 2n minus 1. 2 raised to n minus 1. Correct. Can anyone of you tell me the recurrence relation in towers of Hanoi? Yes. It is 2 2n minus 1 plus 1. 2t n minus 1 plus n minus 1. Today we will discuss merge sort algorithm. First, we will see merge sort algorithm. Example. Already know that how merge sort algorithm is applied. Then we will find out the recurrence relation in merge sort and then we will solve it, as we have seen in yesterday's lecture. So for merge sort algorithm, we will take this list as an example. 10, 7, 23, 5, 2, 8, 6 and 9. This list is given to us and we want to sort it using merge sort. How many number of elements are there in the list? We will call it as n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. So 8 elements are there. So in place merge sort, we know that we divide the list in middle. If input is a list of n numbers, the output is the sorted elements of the list. So there are two cases. If the input is single number, if the list contains only one number, then algorithm does nothing because list is already sorted. If list contains two or more numbers, the first half and the second half of the list each are sorted recursively. We are talking about recursive merge sort algorithm. So what we do, we divide the list into two halves and the first half
is sorted recursively, then second half is sorted recursively. So for the first half, again it is divided in middle, then some elements remain up to there is single element in the list. When there is single element in the list, then merging is done. So if we take this example and we want to divide the list into two halves, so this will be the first half and this will be the second half. I will write it here. Then first half is sorted separately and second half is sorted separately. Again, this list is divided in middle. This will give two lists again, 10, 7, 7. 23 and 5. At the same time, this half will also be sorted. Then this list is again divided into two halves, 10, 7, 23, 5. Now this list and this list contains single element. So now merging will take place. Merging, this is sorted list now, this is sorted list, this is sorted list and this is sorted list. In merging, these two elements are compared and the smallest one is taken. So we will get 7 and 10 here. And then 5 and 23. 5 and 23. Again merging will be there. Here this will look like this. 7 and 5 compared, 5 will be taken. 5. Then 7 and 23 compared, 7 is taken. 7. Then 10 and 23 compared, 10 taken and 20. So we will get the sorted half. Similarly, here we will get sorted list like this, 2, 6, 8 and 9. And then merging will be there of these two sorted list. So first 5 is compared with 2. Then 2 will be taken. Then 5 is compared with 6. 5 is taken. Then 7 is compared with 6. 6 is taken. Then 7 is compared with 8. 7 is taken. Then 10 is compared with 8. 8 is taken. 10 is compared with 9. 9 is taken. Then this list is empty. This list is empty. So remaining elements of this list will be taken. So there are two elements remaining in this list. So 10 and 23 will be taken and we will get this sorted list. So here the output consists of all numbers in sorted order. Traditionally, when we discuss about any sorting algorithm, the question arises is always what is the maximum number of comparisons used in sorting n items? What is maximum number of comparisons used in sorting n items? And this is taken as the estimate of the running time of the algorithm. Now in case of merge sort algorithm, can we express this quantity with a recurrence? Let us see how. First, we have to find the recurrence. So for finding recurrence in merge sort algorithm, let Tn
be the maximum number of comparisons used while merge sorting a list of n numbers. So Tn is the maximum number of comparisons. Here in Towers of Hanoi problem, Tn was considered as number of moves. In merge sort, Tn is considered as maximum number of comparisons used while merge sorting. Because we know when we want to divide a list into middle, we have to take the size and compare, and then we have to divide it. Again, first half divide in middle. So we need comparisons here to divide the list into middle. Again, for merging, we need comparisons. So let Tn be the maximum number of comparisons used while merge sorting list of n numbers. There is one important thing we have to assume, that is n is power of 2. We can write it like this for now. Assume that n is a power of 2. This is because we want to ensure that the input can be divided in half at every stage of recursion. List में even number of elements अगर होंगे तो exactly 2 halves में list divide हो जाएगी. तो ये जो recursion आएगा हर stage पर लीस्ट मिडल में डिवाइड हो सके, इसलिए हमें लीस्ट का लीस्ट में जो एलिमेंट्स होंगे वो इवन ही होंगे, ये इंश्योर करना है. इसलिए हमने n इज टेकन एज अ पावर ऑफ 2. तो जब भी हम मर्ज सॉर्ट का रिकरेंस लिखेंगे वहां पर हमें ये देना ही पड़ेगा कि जो हमारा n है वो 2 से बड़ा है और पावर ऑफ 2 है. ओके. So whatever recurrence we are discussing now, it is not a general formula, but it is a recurrence relation for even number of elements in a list or power of 2 elements in the list. Okay. तो recurrence find out करने के लिए पहले तो हमें अगर वहां पर बेसिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे 0 होंगे या 1 होंगे तो अल्गोरिदम कितनी कंपैरिजंस करेगा ये लिखना पड़ता है. और दूसरा फिर हमें ज्यादा एलिमेंट्स होंगे, n एलिमेंट्स होंगे तो कितनी कंपैरिजंस होंगी ये लिखना पड़ता है. फिर उसके बाद हमें उसका रिकरेंस मिलता है. तो पहले अगर हमारे लिस्ट में ओनली 1 नंबर है तो नंबर ऑफ कंपैरिजंस रिक्वायर्ड आर, कितनी कंपैरिजंस रिक्वायर्ड होंगी अगर एक ही एलिमेंट है लिस्ट में तो 0. करेक्ट, 0. So therefore initial term, first term will be 0. So we will write it like this. If there is only one number in the list, then no comparisons are required. So T1 will equals to 0. Otherwise, मतलब एक से ज्यादा एलिमेंट्स होंगे तो, अदरवाइज तो अगर n एलिमेंट्स है तो Tn नंबर ऑफ कंपैरिजंस लगती है.
तो फर्स्ट हाफ सॉर्ट करने में कितनी कंपैरिजंस लगेंगी और सेकंड हाफ के लिए कितनी कंपैरिजंस लगेंगी। अगर हमारे पास लिस्ट में tn नंबर ऑफ कंपैरिजंस है, लिस्ट n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है और tn नंबर ऑफ कंपैरिजंस लगती है, तो फर्स्ट हाफ के लिए, फर्स्ट हाफ सॉर्ट करने के लिए कितनी कंपैरिजंस लगेंगी। पिछले एग्जांपल में जाके देखो, 8 एलिमेंट्स थे, पहली कंपैरिजन हो गई यहाँ पर, फिर दूसरी हुई यहाँ पर, तीसरी हुई यहाँ पर, फिर यहाँ से मर्जिंग शुरू हो गया, एक एक एलिमेंट आ गया, फिर यहाँ हो गई, यहाँ पर एक एक एलिमेंट आ गया, तो यहाँ से फिर मर्जिंग शुरू हो गया, उसके बाद यहाँ पर होगी, फिर यहाँ पर होगी, फिर यहाँ पर होगी, तो ये 2 and 8 हो जाएगा, ये 6 and 9 हो जाएगा, फिर यहाँ से ये 2 और 8 हो जाएगा, यहाँ से ये 6 और 9 हो जाएगा। तो एक कंपैरिजन ये थी, एक कंपैरिजन ये थी, एक कंपैरिजन ये थी, 3 4 5 6 7, इतनी कंपैरिजंस हमें लग रही थी जब हम पूरी लिस्ट सॉर्ट कर रहे थे। फिर जब एक एक एलिमेंट रहता है तब मर्जिंग शुरू कर देते हैं। ओके, तो लिस्ट को अगर 8 एलिमेंट्स है तो पहले तो हम लिस्ट को मिडल में डिवाइड करेंगे, तो इसको आप 8/2 बोलोगे, तब 4 एलिमेंट एक लिस्ट में आएंगे, 4 एलिमेंट दूसरी लिस्ट में आएंगे, फिर इसको आप 2 बोलोगे, तब 2 एलिमेंट्स इस लिस्ट में आएंगे, 2 एलिमेंट्स इस लिस्ट में आएंगे, फिर आप इसको मिडल में डिवाइड करोगे 2 हाफ्स में, तब एक एक एलिमेंट आएगा और हम रुक जाएंगे। Isn't it? तो जो भी कोई n है उसको जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तब हमारी कोई भी लिस्ट मिडल में डिवाइड हो जाती है। तो अगर हमारे पास n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है और tn मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपैरिजंस है, तो फर्स्ट हाफ बनाने के लिए हमें कितनी कंपैरिजंस लगेंगी? n/2, मतलब t ऑफ n/2 फर्स्ट हाफ के लिए और t ऑफ n/2 सेकेंड हाफ के लिए। ओके, तो ये हम लिख देंगे पहले यहाँ पर, अदरवाइज tn इंक्लूड्स, tn मतलब क्या क्या आएगा, तो tn इंक्लूड्स comparisons used in sorting the first half in sorting second half and डिवाइड करते करते गए हाफ को और बाद में मिलेगा हमें मर्जिंग करना है, एंड इन मर्जिंग द 2 हाफ्स। जो tn है, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपैरिजंस है, उसमें क्या क्या आएगा? कंपैरिजंस रिक्वायर्ड टू सॉर्ट फर्स्ट हाफ, कंपैरिजंस रिक्वायर्ड टू सॉर्ट सेकंड हाफ एंड मर्जिंग 2 हाफ्स। ओके, अब हमें एटमोस्ट निकालना है, ज्यादा से ज्यादा कितनी कंपैरिजंस लगेंगी फर्स्ट हाफ के लिए, तो ये है हमारा tn/2। ज्यादा से ज्यादा कितनी कंपैरिजंस लगेंगी सेकेंड हाफ के लिए, तो वो भी हो जाएगा हमारा tn/2। और मर्ज करने के लिए कितनी स्टेप्स लगेंगी, कितनी कंपैरिजंस लगेंगी,
तो हमें पता है कि पहले जैसे हमने ये लिस्ट देखी, यहाँ पर ये सॉर्टेड थी, ये सॉर्टेड थी, तो यहाँ पर पहले ये कंपैरिजन हो गई, ये दूसरी कंपैरिजन हो गई, फिर तीसरी कंपैरिजन हो गई, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, सिक्स्थ, 6 कंपैरिजन हो गए और उसके बाद एक लिस्ट एम्प्टी हो गई। फिर हमने कंपैरिजन रोक दी और जितने भी एलिमेंट्स पहले लिस्ट में बचे थे उतने सारे लिख दिए। मतलब ये लिस्ट मर्ज करने के लिए हमें 6 कंपैरिजन लगी थी। ओके, तो ये हो गए 6, एग्जैक्टली 6। अगर यहाँ पर ये जो 10 है उससे छोटे दोनों एलिमेंट्स नहीं होते तो फिर 10 आ जाता बीच में, फिर 23 की भी कंपैरिजन हो जाती। तो ज्यादा से ज्यादा अगर 8 एलिमेंट्स मर्ज करने हैं दोनों लिस्ट में से, तो एटमोस्ट कितनी कंपैरिजन आएंगी? कम से कम तो एक भी आ सकती है। अगर आपकी ये लिस्ट पूरी स्मॉल है और ये लिस्ट पूरी ग्रेटर है, तो चार कंपैरिजन्स में ही पूरी लिस्ट सॉर्ट हो जाएगी। तो जैसे कम से कम 4 लगेंगे, वैसे ज्यादा से ज्यादा कितनी कंपैरिजन्स लगेंगी? 8 8 कैसे? जब 7 ये लास्ट का एलिमेंट चला जाएगा तो हमें पता है कि एक ही एलिमेंट बाकी है, तो उसके साथ हम कंपेयर नहीं करते ना। जब एक ही एलिमेंट बचेगा दोनों लिस्ट में, लास्ट वाला एलिमेंट, 7 मैम 7 यस 7। तो जब लास्ट एलिमेंट बचता है तो उसके साथ कंपैरिजन करने के लिए कुछ नहीं होता है। मतलब अगर 8 एलिमेंट्स होंगे तो कम से कम 4 या 3 या 2 कंपैरिजन लग सकती है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 7 लगेंगे। तो अगर n है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो मर्ज करने के लिए ज्यादा से ज्यादा कितनी कंपैरिजन लगेंगी? n minus 1 n-1 comparison. This is because at least one number is emitted after each comparison, and one more number is emitted at the end when one list becomes empty. Since n items are emitted in all, there can be at most n-1 comparisons. Okay, so using this background, we can say that therefore the maximum number of comparisons needed to merge sort n items is given by the recurrence I will write the recurrence on the next page. So how we write the recurrence? First we write initial term, which is T1, and then we write Tn. So we know T1, when there is one element in the list, no comparison is required. So T1 equals to 0. And if n elements are there, then we know that it is T of n by 2 for first one, then T of n by 2 for second one, 6 and n-1 for comparison और merging. So ये एक Tn by 2 है और एक Tn by 2 है, तो ये आ जाएगा हमारा 2Tn by 2 प्लस n-1। और यहाँ पर ये जो n है उसके बारे में टिप्पणी करना जरूरी है। n is greater than or equals to 2 and a power of 2। ये किस लिए जरूरी है? क्योंकि n हमें इवन ही चाहिए या 2 की ही पावर चाहिए।
जैसे 4, 8, 16, 32, 64 and so on. So this is the recurrence relation of merge sort algorithm. आपको ये ध्यान में रखना है. टावर्स ऑफ हेनाय का क्या था? Tn equals to 2Tn minus 1 +1 plus 1. तो मर्ज सॉर्ट का क्या है? Tn equals to 2Tn by 2 plus n minus 1. 1 ओके. अब जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था कि अगर हमें सीक्वेंस डिस्क्राइब करनी है मर्ज सॉर्ट की, मतलब एक एलिमेंट है तो कितनी कंपैरिजंस, दो एलिमेंट्स है तो कितनी कंपैरिजंस, 4 एलिमेंट्स है तो कितनी कंपैरिजंस, 8 एलिमेंट्स है तो कितनी कंपैरिजंस, 2 की पावर वाले लेने पड़ेंगे. तो इसलिए हमारे पास हमने एक मेथड देखी है गेस एंड वेरीफाई की, और बाकी और मेथड्स भी आने वाली है. तो इसलिए पहले हम क्या करेंगे, रिकरेंस सॉल्व करने के लिए जो इनिशियल वैल्यूज है फ्यू टर्म्स कैलकुलेट कर लेंगे सीक्वेंस की. तो मैं यहाँ पर हेडिंग दे दूंगी सॉल्विंग द रिकरेंस. अब हमें क्या करना है, हमने रिकरेंस फाइंड कर लिया है, अगली स्टेप है हमें रिकरेंस सॉल्व करना है. तो ये रिकरेंस सॉल्व क्यों करना पड़ता है ये आपको पता है, फिर भी मैं और एक बार बताऊंगी. उसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ी इनिशियल टर्म्स फाइंड आउट कर लेते हैं. तो इनिशियल टर्म तो हमारे पास है T1 विच इज 0. अब नेक्स्ट टर्म होगी हमारी T2. नेक्स्ट टर्म कौन सी होगी, बोलो? T4 T4. यस, वेरी गुड. T3 नहीं आएगी यहाँ पर, T4 आएगा. नेक्स्ट विल बी T8 और नेक्स्ट T16. तो T16 ये 5 टर्म्स हम निकालते हैं और देखते हैं कि कोई पैटर्न मिलता है या नहीं. ओके. सो T1 0 है तो T2 कैसे लिखेंगे फिर? रिकरेंस रिलेशन है आपके सामने, ये आ जाएगा आपका 2T 2 by 2 प्लस 2 minus 1. तो ये आ जाएगा आपका 2T1 प्लस 1. ओके. तो T1 कितना है? 0 0 1, मतलब ये आ गया आपका 1. अब T4 निकालो. T4 आ जाएगा आपका 2T4 by 2 प्लस 4 minus 1. तो ये आ जाएगा आपका 2T2 प्लस 3. ये आ जाएगा 2 into 1 प्लस 3, मतलब 7. ओके. T8 की वैल्यू निकालो और T16 की भी वैल्यू निकालो और मुझे बताओ. क्या आई T8 की वैल्यू? यहाँ पे ये गलत हो गया, ये 7 नहीं है, ये कितना है? 5. अगर ऐसी मिस्टेक हो गई तो फिर पैटर्न तो मिलने से रहा हमें. T8 की वैल्यू 17 मैम. T8 कितना आया? 17 ये लेट्स चेक. 2T8 by 2 plus 8 minus 1, 2T4 plus 7, which is 10 plus 7. Correct. T16 कितना आया?
49. 49. Okay, 49. okay. Let's check. 2t 16 by 2 plus 16 minus 1, which is 2t 8 plus 15, which is 34 plus 15. 5 आणि 4 9, 3 आणि 4 आणि okay 49. Okay, we got it. Yes, correct. 0 1 5 17 49. Let's write on the next page. तो सीक्वेंस हमें मिली है 0 1 5 17 49. ओके, नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, ये हमें गेस करना है, इसके लिए फॉर्मूला। तो ये सीक्वेंस है आपके सामने, जैसे पिछले एग्जांपल में आपने गेस किया था, करेक्ट गेस किया था, वैसे आप इस सीक्वेंस के लिए भी फॉर्मूला गेस करो। अगर आप फॉर्मूला गेस कर सकते हो तो फिर हम गेस एंड वेरीफाई मेथड यूज करेंगे ये रिकरेंस सॉल्व करने के लिए। टेक 5 minutes and guess a formula. मिला किसी को पैटर्न, फॉर्मूला मिला? कोई बता सकता है फॉर्मूला? तीन मिनट्स खत्म हो गए, 2 मिनट बाकी अभी। मिला किसी को फॉर्मूला? Hello, ma'am. यस। N minus 1 into 2 to power n plus 1. What? Tell again. N 10 minus 1. 10 minus 1.
n minus 1 n minus 1 in the bracket. वो n minus 1 ब्रैकेट में मैम, उसके बाद into, ये ब्रैकेट में है क्या? यस मैम, हाँ into 2 to power n 2 to power n minus 1 minus 1 नीचे मैम, minus 1 यहाँ पर. ओके मतलब ये है n minus 1 2 raised to n minus 1, ऐसा है. यस मैम. ओके तो इसको आप ये ब्रैकेट सॉल्व नहीं कर सकते क्या? वो n चाहिए उसके लिए मैम. या ऐसे ही करना है, ऐसे यूज करना है फॉर्मूला? ओके तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगी फिर यहाँ की? ये फॉर्मूला यूज किया तो यह है n equals to 1, n equals to 2, n equals to 3, 4, 5, 6. तो 6 minus 1 मतलब 5 into 2 raised to 6 minus 1. So 2 raised to 6 is कितना होता है? 2 raised to 6 64. 64 होता है ना 2 raised to 6? Yes. 64 into 5 करो. 64 into 5 करो. Into 5 320. minus 1. तो ये हो गया आपका 319. 319 रिकरेंस में डाल के देखो 319 आता है क्या? ये है आपका रिकरेंस 2t n by 2. मतलब आप कौन सा निकाल रहे हो अभी? ये फिफ्थ नहीं था, ये फिफ्थ 5 है, n नंबर ऑफ टर्म्स 5 है और ये सिक्स्थ टर्म है. तो हमारे लिए ये 2 की पावर नहीं है, 2 की पावर लगती है ना हमारी. तो यहाँ पर ये 6 यूज करना राइट है, या यहाँ पर हमें ये जैसे 1 2 32. 4 ऐसे करना चाहिए. जैसे 32. 1 2 4 8 16 32. तो n की वैल्यू 32 लेनी चाहिए या 6 लेनी चाहिए? किसने बताया था ये फॉर्मूला? निशांत मैम. निशांत. हाँ निशांत, आपने ये कैसे गेस किया? आपने 6 कंसीडर किया है या 32 वो कंसीडर किया है? मैं वैल्यू पुट किया था मैम, वो 015 ऐसे कर. ये ऐसी ये रिकरेंस यूज किया था क्या? यस मैम वैसा ही. ओके लेकिन ये फॉर्मूला कैसे आया आपका, ये पूछ रही हूँ मैं. वो अभी मैंने ये डिजिट को कंपेयर किया आगे और पीछे का. अच्छा ये इससे. यस. तो फिर हाँ बताओ. ठीक है तो 319 करेक्ट है क्या यहाँ पर? 49 के बाद 319 आएगा क्या? नहीं वो गलत आ रहा है. ओके नो प्रॉब्लम. ये जो फॉर्मूला है ये पिछले साल के एक स्टूडेंट ने भी लाया था. एक्चुअली मैंने अब तक 3 बैचेस एमएससी को पढ़ा है ये सब्जेक्ट, और एमसीए की ये आपकी 4th बैच है. तो ये जैसा फॉर्मूला आपने गेस किया निशांत, वैसा ही फॉर्मूला एक ही स्टूडेंट थी पिछली बैच की, अंकिता चौधरी आपकी सीनियर है, उसने गेस किया था. जैसे ये फॉर्मूला आपने गेस किया ना वैसे उसने भी किया था, उसने ये सेम ही किया था शायद. तो एक्चुअली हियर सबको पता चल गया कि गेस करना बहुत डिफिकल्ट है. वी आर इन ट्रबल. Guessing the solution to this recurrence is hard because there is no obvious pattern. ऐसे एकदम जल्दी से जैसे पिछला पैटर्न मिल गया था,
वैसा पैटर्न हमें यहाँ पर मिला नहीं है। बहुत कोशिश करने के बाद फॉर्मूला मिल सकता है और फिर उस फॉर्मूला को हम मैथमेटिकल इंडक्शन से जैसे गेस एंड वेरीफाई किया था वैसे कर सकते हैं। ओके, तो अभी ये जो फॉर्मूला आपने बताया है वो हमें पता नहीं है कि करेक्ट है भी या नहीं, तो ऐसे वक्त हम क्या करते हैं, गेस एंड वेरीफाई के लिए नहीं जाते हैं, हम दूसरी मेथड यूज करते हैं और उस मेथड का नाम है प्लग एंड चेक। तो ये रिकरेंस जो मर्सॉट का रिकरेंस है ये हम गेस एंड वेरीफाई से सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि हमें कोई ऑब्वियस सॉल्यूशन नहीं आया। निशांत ने जो फॉर्मूला बताया है वो फॉर्मूला करेक्ट हो सकता है, ओके हो सकता है, और आप वो उसको वेरीफाई भी करेंगे एज एन होमवर्क। ओके, अगर होता है तो अच्छी बात है, लेकिन जब हम ऐसी ट्रेवल में पहुंच जाते हैं कि जहां पर हमें कोई पैटर्न ऐसे ऑब्वियस नहीं मिलता है तो हम गेस एंड वेरीफाई के लिए नहीं जाते, हम प्लग एंड चग मेथड के लिए जाते। तो दूसरी एक मेथड है जिसका नाम है प्लग एंड चग मेथड। तो ये प्लग एंड चग मेथड 3 स्टेप्स में परफॉर्म होती है। तो उसकी फर्स्ट स्टेप है प्लग एंड चग until a pattern appears. Plug and chug until a pattern appears. ओके, सो प्लग मतलब क्या एंड चग मतलब क्या? तो प्लग में हम लोग क्या करते हैं, ये जो रिकरेंस इक्वेशन है उसको एक्सपांड करते हैं और बाद में उसको सॉल्व करते हैं। तो एक्सपांड करना मतलब प्लगिंग और उसको सॉल्व करना मतलब चगिंग। तो जब तक हमें कोई पैटर्न नहीं मिल जाता हम प्लग एंड चग करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो अपना रिकरेंस रिलेशन लिख लेंगे यहाँ पर, जो है हमारा Tn इक्वल्स टू 2 Tn/2 प्लस n माइनस 1, ये हमारा रिकरेंस रिलेशन है। अब हम क्या करेंगे, ये जो Tn/2 है ये भी फंक्शन ही है ना, Tn जैसे फंक्शन है वैसे ये Tn/2 फंक्शन है। तो ये Tn/2 को एक्सपांड करेंगे। तो एक्सपांड कैसे करेंगे, ये जो 2 है ये ऐसे कैसे लिख लेंगे, Tn/2 को हम एक्सपांड करने वाले, उसके बाद जो रिमेनिंग टर्म्स है वो वैसे के वैसे रखेंगे और इसको हम बोलेंगे प्लग। हमने किया प्लग। तो ये जो Tn/2 है, जैसे Tn के लिए रिकरेंस था 2 Tn/2 प्लस n माइनस 1, तो Tn/2 के लिए क्या आएगा, Tn/2 के लिए यहाँ पर 2 आ जाएगा और Tn/2/2 ये जो टर्म होती है इसे हम मिडल में डिवाइड करते हैं ना, तो n/2 को हाफ में डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा, n/4। यस करेक्ट, n के 2 टुकड़े n/2। अब n/2 के 2 टुकड़े मतलब n के 4 टुकड़े, तो ये आ जाएगा आपका Tn/4 प्लस, तो यहाँ n की वैल्यू होगी, तो n की वैल्यू अब क्या होगी हमारे यहाँ पर n/2 माइनस 1। ये समझ में आ गया सबके? ओके, अब ये जो 2 है ये बाहर का 2, ये सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे, मतलब हम इसको सॉल्व करेंगे और उसको हम बोलेंगे चर। तो ये 2 इंटू 2 4 हो गया, 4 Tn/4 हो गया आपका,
प्लस 2 इंटू एन बाई टू, सिर्फ एन बाकी रह गया, 2 इंटू -1, ये आपका -2 हो गया, फिर ये प्लस एन और ये -1। ओके, ये हो गया आपका चक। अब हम ये जो -2 और -1 और ये जो n और ये n, इनको कंबाइन नहीं करेंगे, नहीं तो क्या हो जाएगा, ये 4tn/4 प्लस 2n -3 हो जाएगा, प्लस 2n -3। हमें क्या करना है, कुछ तो भी पैटर्न मिलता है क्या, वो पैटर्न ढूंढना है। इसलिए अभी तो फिलहाल हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे और ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर लेंगे, इसको ब्रैकेट डाल देंगे और इसको भी ब्रैकेट डाल देंगे, मतलब कोई पैटर्न मिल सकता है। ओके, यहाँ पे तो हम श्योर नहीं है कि कोई पैटर्न है, फिर हम क्या करेंगे, फिर से प्लग करेंगे, फिर से इसको एक्सपांड करेंगे। तो ये हो गया 4 बाहर, यहाँ पर हमें अभी tn/4 का एक्सपांशन लिखना है और इसके बाद ये टर्म है n-2 प्लस n-1 और इसको फिर से हम बोलेंगे प्लग। ओके, तो अब लिखो ये tn/4 के बारे में, ये आ जाएगा हमारा 2 और tn/4/2 मतलब ये क्या आएगा, n/8। यस करेक्ट, 8 वेरी गुड, ये आ गया tn/8 प्लस यहाँ पर क्या लिखो, n/4 n/4, वेरी गुड, 4 और -1। 1 अब फिर से इसको चेक करो, ये हो जाएगा आपका 8 tn/2 tn/8 हो जाएगा, n/8 प्लस प्लस 4 कैंसिल हो गए और n-4 आ गया, और जो हमारा n-2 था और n-1 था वो वैसे के वैसे रख दिया। ओके, अभी थोड़ा थोड़ा ये ध्यान में आ रहा है, कुछ तो पैटर्न निकल रहा है, फिर भी एक बार फिर से करके देखते हैं। इसको एक बार फिर से प्लग करेंगे, ये 8, अब tn/8 एक्सपांड करेंगे और जो n-4 है उसको वैसे के वैसे रहने देंगे, n-2 को भी और n-1 को भी, और इसे हम फिर से प्लग करेंगे। तो बोलो यहाँ पर क्या आएगा, 2tn/16 प्लस n/8 n-8 8 माइनस -1 ओके। अभी नेक्स्ट स्लाइड पे हम इसको एक्सपांड करेंगे, सॉल्व करेंगे, चेक करेंगे। तो ये आपका आ जाएगा, क्या आएगा, 16 tn/16 प्लस n प्लस n-8, दिखाओ आपको वो, ये 16 tn/16 8 8 कैंसल आउट हो गया, -8 बाकी है और ये बाकी रिमेनिंग टर्म्स। तो ये आ गया आपका n-8 n-4 प्लस n-2 प्लस n-1 और ये हो गया आपका जब। अभी यहाँ पर हम कुछ पैटर्न ढूंढ सकते हैं। अगर मैंने ये जो n है तो an को 16 है, यहाँ पर 16 है और बाकी की जो टर्म्स में है उसमें 8, 4, 2 और 1, ये भी 2 की पावर है। तो अगर मैंने ये 16 को और इन नंबर्स को 2 की पावर से रिप्लेस किया तो ये 2 की कौन सी पावर है, 4 ये 2 की 4th पावर है और फिर ये tn/2⁴ 4 प्लस n-2⁵ प्लस n-2⁵ 2 2
प्लस n माइनस 2⁻1 1. प्लस n माइनस 2⁻0. 0. ओके, ऐसे ये हमें कुछ मिल रहा है. तो अगर हम यहाँ पर देखें कि ये जो n है, तो फर्स्ट केस में ये 2⁻1 हुआ था, फिर ये 2⁻2 हुआ था, ये 2⁻3 हुआ था, और अभी ये 2⁻4 हो गया. तो जब ये 2⁻4 है तो ये 2⁻3 मतलब 4-1, ये 2⁻2 मतलब 4-2, देन 4-3, देन 4-4, ऐसी ये पावर आ रही है. तो ये जो हमने यहाँ पर देखा, इससे एक पैटर्न इमर्ज हुआ है. So we can write down a pattern is emerging. And this formula is, or this pattern is, Sims holds. अब इसको क्या करेंगे, के फॉर्म में लिखेंगे. जैसे Tn इक्वल्स टू, अगर मैंने ये 4 को 2⁻k लिखा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, T ऑफ n अपॉन 2⁻k आ जाएगा, प्लस n माइनस 2⁻k माइनस 1 प्लस n माइनस 2⁻k माइनस 2. ये जो ब्रैकेट है ये यहाँ पर नहीं, ये पूरा एक्सप्रेशन का है, प्लस n माइनस 2⁻k माइनस 3. ऐसे करते करते ये जो लास्ट का होगा ये आ जाएगा आपका n माइनस 2⁻0. ओके, यहाँ तक तो आ गया समझ में. अब आप अगर ये पूरी टर्म्स देखेंगे तो यहाँ पर ये आपका आ गया 2⁻k, Tn अपॉन 2⁻k. अब ये जो n है, ये n, an, आगे भी n है, और an, ये कितने n है, हमें ऐड करने इनको. जैसे कि 1, 2, और यहाँ पर, यहाँ दिख रहे हैं, आगे देख लो, यहाँ पर देख लो आप. यहाँ पर जब ये 2⁻2 था, ये 2⁻2 था, तब कितने n थे, 2n. 2n थे. जब ये 2⁻3 था तो कितने n है, 3n. जब ये 2⁻4 था तो कितने n है, 4n. तो जब ये 2⁻k है तो कितने n होंगे, kn. n. तो ये जो सब n है उनकी हमने एडिशन कर ली, kn. तो बाकी क्या बचा, फिर सारी टर्म्स माइनस है, तो ये आगे आपका 2⁻k माइनस 1 माइनस 2⁻k माइनस 2 माइनस डॉट 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 माइनस 2⁻0. सब माइनस है ना ये. Yes. ओके, अब अगर आप ये टर्म देखते हो, 2⁻k माइनस 1, 2⁻k माइनस 2, 2⁻0, यहाँ से मैं क्या कर लेती हूँ कि ये जो माइनस है ये बाहर अगर मैंने निकाल लिया, मतलब मैंने ये ऐसे 2⁻k Tn अपॉन 2⁻k प्लस kn कर लिया, और ये माइनस यहाँ पर निकाल लिया, तो ये जो टर्म्स रहेंगी, सारी टर्म्स, ये सारी प्लस हो जाएंगी. Yes. 2⁻k माइनस 1 प्लस 2⁻k माइनस 2 अप टू 2⁻0. तो वो कैसे दिखेगा आपको, 2⁻k माइनस 1 प्लस 2⁻k माइनस 2
प्लस डॉट 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 प्लस 2⁻0। तो ये जो सीक्वेंस है ये एक पैटर्न है। तो आपको ये तो पता है कि ये 2⁻0 जो है वो 1 है। मैं फिर से लिखती हूँ यहाँ पर 2⁻k tn अपॉन 2⁻k प्लस kn, और ये माइनस आ गया। यहाँ पर मैं ये जो 2⁻0 है ये 2⁻0 ये 1 आता है हमेशा। यस। तो ये जो सारी टर्म्स है 2⁻k-1, k-2, k-3, तो ये k तक था, isn't it? ये k तक था, इसलिए ये 0 आया था। तो अगर मैंने ये एक छोड़ दी तो कितनी टर्म्स रहेंगी ये? k-1 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 रहेंगी कि k रहेंगी? k टर्म्स, k terms. k टर्म्स रहेंगी। ओके, k क्यों रहेंगे? क्योंकि जैसे 1 to 100 में कितने आते हैं? 1 to 100 में 101 आते हैं। वैसे 1 to k-1 में कितने आएंगे? k आएंगे ना। तो इसलिए हमने इसको 2⁻k से रिप्लेस कर दिया, और ये जो 1 है लास्ट वाला ये माइनस और ये बाहर का माइनस, ऐसे करके ये 1 हो गया। एक्चुअली ये जो एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बताया है ये इतना राइट नहीं है। ये जो सीक्वेंस है ये वाली 2⁻k-1 प्लस 2⁻k-2 प्लस 2⁻0, ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, और इसका फॉर्मूला आता है 2⁻k-1। ये जो सीक्वेंस है इसके बदले में जो सीक्वेंस आती है वो हो जाती है 2⁻k-1। अब हमारा ये इसके बाहर है माइनस का साइन, इसलिए ये बाहर निकलने के बाद -2⁻k प्लस 1 हो गया। ये एक्चुअली पार्शियल सम का एक फॉर्मूला है, मैथमेटिकल फॉर्मूला है कि ये जो सीक्वेंस है 2⁻k-1 प्लस 2⁻k-2, तो ये आ जाती है आपकी 2⁻k, और ये हुआ हमारा पैटर्न। अब हम यहाँ रुकेंगे और कल हम ये पैटर्न वेरीफाई करेंगे, सेकंड स्टेप करेंगे। तो यहाँ पर मैं ये जो फॉर्मूला हमने निकाला है वो फॉर्मूला बस लिख देती हूँ यहाँ पर। Tn इक्वल्स टू 2⁻k Tn अपॉन 2⁻k प्लस Kn माइनस 2⁻k प्लस 1। ये हमारा पैटर्न है। तो प्लग और चक की पहली जो स्टेप है वो हमने कंप्लीट कर ली है। सेकंड स्टेप रहेगी वेरीफाई द पैटर्न, और थर्ड स्टेप रहेगी गेस अ सॉल्यूशन करके यूजिंग अर्ली टर्म्स। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अगर पॉसिबल हुआ तो कल लेक्चर लेंगे, नहीं तो फिर फ्राइडे को ये लेक्चर होगा। ठीक है, एनी डाउट हियर? लेट मी स्टॉप। आपको लेक्चर है ना आगे? यस मैम। Okay, so I'm stopping Yes, ma'am. recording.